everyone, welcome to Santosh Sir classes, and in this video I'll be sharing the IBO02 last minute suggestions. All these questions you must revise before going to the exam. All the most important and common questions that I prepared after analyzing the last 10 years questions. And today was IBO04 paper, and thank to God, lot of questions were common from my suggestions. So I hope in the forthcoming exams also you get the same common questions and the suggestions which I give you. And thank you very much for your faith, your trust, your confidence that you have shown on me and on my channel. In fact, this IBO02 is one of my favorite subject. I love marketing management. And let's see a few important questions. Before that, IBO02 में एक चीज अच्छी है कि there are no comment section. That means आपको बहुत ज़्यादा राइटिंग स्किल्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एज इन केस ऑफ IBO01 और IBO04. So there are no comment section, and you will be required to answer 5 questions out of 8 or 9 including short notes. तो सिंपल फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का, and a very best of luck for the exam. And if you have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए फॉर दिस IBO02 एग्जाम्स इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग इट्स अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. इट स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. आई मीन प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले ही मार्केटिंग शुरू कर देते हैं. एंड इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड इन द मार्केट, टिल देन the marketing activities just continue to go on. So it is a never ending process, and completely it covers everything. I mean selling, distribution, pricing, advertising, publicity, sales promotion, branding, packaging, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो and when we talk about international marketing, तो यहाँ पे चीज़ और भी complex हो जाती है, because we are selling our product in foreign markets. So it is really a very, very challenging job, not easy job. So if you are asked to write about what is international marketing management, so you can write in that way that it is a complete process which starts much before the production of goods, and it continues till or after the sale of goods. And when we talk about its importance, तो इम्पॉर्टेंस तो या बहुत सारे इम्पॉर्टेंस हैं. तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंस है, इसकी जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंस है, दैट इज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द कंज्यूमर नीड्स, व्हाट कंज्यूमर वांट्स. ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज वंस वी आइडेंटिफाई कि व्हाट द कंज्यूमर वांट्स टू हैव, कौन से प्रोडक्ट चाहिए उसको, व्हाट इज हिज टेस्ट, हिज फैशन, हिज ट्रेडिशन. So accordingly we will manufacture the goods so that it can be easily sold to the customers. So it's very important that you should, as a company, as a marketing manager, you should know the taste and preferences of the customers. The second point, it helps, again consumer oriented point is this is, I hope you will be able to see the board what I am writing here. So consumer satisfaction. So that is why I told you earlier that the job of a marketing manager starts before the production and continues even after the sale of goods. So till the customer is satisfied with the product or services that you are offering. So it's a very big process. And the third importance can be of sales. It increases the sales of the product, and thereby it increases the profit of the company. So both these points are interrelated, but not always, because more sales, that doesn't mean that the company can earn more profits. Okay, so profit is different, selling is different, and every company, in fact, they have to earn profit to survive in the market. And one more point you can write here, that is goodwill. It enhances the goodwill of the company.
proper marketing procedure, proper marketing strategies, so that that enhances the reputation of the firm. So in that way it is very important. बहुत सारे और भी points हैं जो हम लोग लिख सकते हैं. It helps in the distribution process, transportation, warehousing, I mean marketing mix जिसको बोलते हैं, 4 P's, तो उसके लिए भी help कर सकता है. And it helps to utilize the available resources properly. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग लिख सकते हैं इन द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग. सो दिस क्वेश्चन यू मस्ट रिवाइज फॉर द एग्जाम. एंड एज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दिस के सेलिंग इज अ स्मॉल कंसेप्ट. इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, whereas marketing is a big concept and selling is a part of marketing. So in that way you can define the points. Let's move on to the next question. You can revise this. What is strategic marketing for short notes? Then we have the next very important question, that is why do firms go international? ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है कि वाई कंपनीज दे गो फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग. सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस एक्चुअली, एंड कुछ एक रीजंस हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं सो दैट यू वुड हैव क्विक रिविजन्स ऑफ द पॉइंट्स. सो जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरे लैपटॉप में जो पहला रीजन मैंने दिया हुआ है, अनफेवरेबल डोमेस्टिक कंडीशंस. unfavorable domestic conditions. अगर आपकी होम कंट्री में सिचुएशंस या कंडीशंस अच्छे नहीं है फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, obviously the company has to go to other nations to sell its goods and services. So this point is very important. The second point that I have written here, government policies. If the government policies are not very influential, that do not help to grow and expand the business, obviously the firm would go international. The third point that I have given here, growth of international market. अगर इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली द कंपनी विल डेफिनेटली गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि उसको सेल करना है, प्रॉफिट कमानी है. एंड अगर उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड है तो वेल एंड गुड. फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन और एक्सेस प्रोडक्शन. अगर कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, सो ऑब्वियसली इट वांट्स टू डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्शन, अदरवाइज इट वुड हैव टू सफर लॉसेस. सो इफ देर आर नॉट मच डिमांड्स इन द डोमेस्टिक कंट्री, इट वुड गो इंटरनेशनल. It would try to sell its goods in the international market. Some more points you can write. Inflation. If in the domestic country, if बहुत ज़्यादा inflation है, inflation means increase in the price level. अगर goods and services के जो prices हैं वो continuously increase कर रहे हैं, so that is called inflation. तो due to inflation also बहुत सारी कंपनी बाहर चली जाती हैं. They try to sell outside. एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लास्ट पॉइंट जो है, दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. कौन नहीं चाहता है कि वो ग्रो करे, एक्सपैंड करे? तो एवरी कंपनी इट ऑलवेज ट्राइज टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस. तो अगर होम कंट्री में इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है तो ऑब्वियसली द कंपनी विल गो इंटरनेशनल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एंड ये आई थिंक यूनिट 2 से है. व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मार्केटिंग मैनेजमेंट? इफ़ यू आर ए मार्केटिंग मैनेजर एंड अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के आपको अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट करनी है तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट यू विल बी अंडरटेकिंग? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 प्रोसेस दिए हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, नॉट डोमेस्टिक मार्केट. ओके, तो पहला जो है मार्केट सिलेक्शन, यू विल सिलेक्ट द मार्केट. एंड द सेकंड वन, प्रोडक्ट सिलेक्शन. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मार्केट सिलेक्शन करना है.
कि आपको कौन सी कंट्री में कहां पर गुड्स को सेल करना है. देन यू विल चूज द प्रोडक्ट कि विच प्रोडक्ट यू वांट टू सेल outside the country, outside the home country. The third process says mode of entry of selection. How you will enter the international market. That is called mode of entry. इसके बाद क्वेश्चंस हैं इसके how you enter into the international market. उसके different ways हैं, तो we will talk about that later on. And the marketing strategy that you will use in that particular country. So सबसे पहले आपको मार्केट सिलेक्ट करना है, then you will select the product, then you will select the mode of entry, and fourthly strategy, and lastly the international organization decision. That means international policies. तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं ये बनाती है WTO, UN, वर्ल्ड बैंक. तो ये सारी पॉलिसीज़ को भी यू नीड टू एनालाइज बिफोर एंटरिंग इनटू द फॉरेन मार्केट. ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया. इसके बाद में देखते हैं एक और बहुत ही कॉमन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है EPRG फ्रेमवर्क. नाउ EPRG फ्रेमवर्क इसकी अगर हम लोग बात करते हैं मीनिंग की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि दे रट्टेबाज होते हैं, रट्टा मारना उनको अच्छा लगता है. सो वो चीज़ ना करें. ट्राई टू कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ज़्यादा जोर रखें. एंड EPRG E से हो गया एथनोसेंट्रिक, देन P स्टैंड्स फॉर पॉलीसेंट्रिक, R for regiocentric and G for geocentric. तो ये बेसिकली ये क्या चीज़ है? इट्स हम लोग जनरली कॉमन जो क्वेश्चंस में मिलता है फ्रेमवर्क, ओरिएंटेशन. तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि दीज आर अप्रोचेस हाउ यू विल अप्रोच द इंटरनेशनल मार्केट. व्हाट स्ट्रैटेजी और फ्रेमवर्क और द प्रोसीड्योर दैट यू आर गोइंग टू यूज. तो ये 4 टाइप के अप्रोचेस हैं. एथनोसेंट्रिक में क्या होता है कि मार्केटिंग मैनेजर ये सोचता है कि जो डोमेस्टिक कंट्री में द सिस्टम, द रूल्स, द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट ही यूजेस सेम कैन बी अप्लाइड इन द फॉरेन कंट्री. देन वी हैव पॉलीसेंट्रिक. नाउ द मैनेजर हु बिलीव्स इन पॉलीसेंट्रिक, he believes that no, there should be different marketing strategy in different international market. The third says regiocentric. Regiocentric basically region के ऊपर डिपेंड करता है. For every region there should be different marketing strategy as believed by the marketing manager. And geocentric, that is according to the zones. So like this. So now it depends on the marketing manager to select which approach is best suitable for his product or services. Okay. ये अच्छा क्वेश्चन है. बहुत बार EPRG फ्रेमवर्क पे आपको क्वेश्चंस मिलता है एग्जाम्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. एज वी नो माइक्रो मैक्रो 2 टाइप के एनवायरनमेंट हैं. एंड अगेन माइक्रो में ऑल इंटरनल फैक्टर्स लाइक वर्कर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, like more or less the company has hold control over these internal factors. But macro is bit bigger factor, जहाँ पे global international में कैसी situation है, and the economic conditions, the technological standards. तो ये जो मतलब which are beyond the control of a company. So ये सारे पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करने हैं. इसके अंदर पॉलिटिकल, देन सोशियो कल्चरल, वो सारे भी फैक्टर्स हैं. तो ये सारे को डिफाइन करना है. कॉमन क्वेश्चन है. ऑलमोस्ट आई थिंक एमकॉम के सारे सब्जेक्ट में ही एनवायरनमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है. नाउ दिस क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. व्हाई दिस बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? व्हाई वी डू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट? तो सबसे पहले एनवायरनमेंट जनरली आप लोगों ने किया होगा
MCO 01 में एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो एक तरीके से स्कैनिंग करते हैं टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज, द स्ट्रेंथ, द वीकनेसेस, तो लाइक दिस, एक तरीके से स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में स्वॉट, एस फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो ये चार चीजों को फाइंड आउट करने के लिए जनरली वी यूज दिस एनवायरमेंटल स्कैनिंग, वी डू ऑल दिस टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड मे बी इट इज फ्रॉम यूनिट 4। द क्वेश्चन इज फ्रॉम सेगमेंटेशन। आई बिलीव सेगमेंटेशन से आपको एक क्वेश्चन मस्ट मिलने वाला है इन दिस एग्जाम, तो बिल्कुल इसको आप अच्छे से करें। मार्केट सेगमेंटेशन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, कुछ एक बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को, आई मीन कस्टमर्स के इनकम को लेके, या फिर उनके सोशल क्लासेस को लेके, या फिर उनके ट्रेडिशंस को लेके। तो लाइक दिस वी कैन सेगमेंट द मार्केट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। We can also divide the market into male and female and children. ठीक है, so this is segmentation, and segmentation में इसके बहुत सारे advantages हैं। The basic advantages is that कि like the company can easily find out the taste and preferences of the customers. It can know like what is demanded by the people, and accordingly it can frame the strategies. प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर एक बार बन गई तो कंपनी की बल्ले बल्ले 100%। एंड टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कस्टमर्स और ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, सॉरी। तो लाइक दिस इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स और बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आता है। तो सेगमेंटेशन को जैसे मैंने बोला कि ऑन व्हाट बेसिस वी कैन डिवाइड, तो यहां पे जैसे 5 बेसिस हैं आपके सिलेबस में। जो पहला बेसिस है दैट इज ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, देन वी हैव साइकोग्राफिक, बिहेवियरल एंड बेनिफिट। तो पहले के जो 4 हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट। नाउ ज्योग्राफिक एज द नेम इंप्लाइज कि अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी वी डिवाइड द मार्केट। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया, तो वी कैन डिवाइड द मार्केट ऑफ इंडिया as South India, North India, East India and West India. So like this we can segment the market according to the zones. Then we have demographic. Demographic in the sense ke like the market is divided on the basis of the age, the social class, the income, I mean basically based on consumers. So we can divide the market. One more, that is psychographic. Now in psychographic what happens, the market is divided on the basis of psychology of the buyers, their attitude, their values, their culture, their perception. So on that basis we divide the market. So that is psychographic segmentation. One more segmentation, that is behavior segmentation. Again, according to the behavior of the consumers we can divide the market. Like how they make a purchase, their buying decisions, whether the customers quickly purchase or they take time. कई सारे कस्टमर्स होते हैं ना, विंडो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को। एंड लास्ट एक है बेनिफिट सेगमेंटेशन, जहां पे अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स, मतलब कंपनी को कितना बेनिफिट मिल सकता है पर्टिकुलर मार्केट से, सो इन दैट वे ऑल्सो वी कैन डिवाइड। ओके, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम मार्केट पोजीशनिंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज फार एज दिस इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। एंड इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पोजीशनिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोजीशनिंग, आई मीन मार्केट और प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है। Basically creating an image of the product or services in the minds of the consumers is what is termed as market or product positioning. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं समझ नहीं पाते इस चीज़ को।
दिस इज मार्केट पोजीशनिंग। तो बेसिकली एक पोजीशन बनाना। नाउ किसकी पोजीशन बनाना, आइदर मार्केट या फिर प्रोडक्ट भी आपको पूछ सकता है। तो प्रोडक्ट की पोजीशन बनाना इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स, सो दैट इज कॉल्ड मार्केट पोजीशनिंग और प्रोडक्ट पोजीशनिंग। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग आर देयर, आई मीन मेथड्स और स्ट्रैटेजीज। तो बेसिकली 3 स्ट्रैटेजीज हैं, कंपैरेटिव, डिफरेंशिएशन एंड सेगमेंटेशन। नाउ ये स्ट्रैटेजीज को मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी टाइम आपको एक्सप्लेन किया है। एंड कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी, ये 3 स्ट्रैटेजी हैं इसके मेथड्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। 3 मेथड्स, वन इज कंपैरेटिव, comparative strategy, then we have differentiation, and lastly we have segmentation। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के लिए। सो प्रोडक्ट पोजिशनिंग, 3 मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि द प्रोडक्ट इज जस्ट पोजीशन्ड बिसाइड द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एंड कंपैरिजन होता है। आई मीन यू नो लक्स एंड डिटॉल, तो दोनों सोप को बार बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो डिस्प्ले होता है आई मीन आउटलेट्स में, तो जितने भी सोप्स होते हैं वो आसपास में रखे जाते हैं सो दैट द कस्टमर कैन कंपेयर द डिफरेंट शॉप्स, आई मीन सोप्स और द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, लाइक प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से यू नो दे डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एंड यू नो थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स एंड पब्लिसिटी दैट डिफरेंसेस यू नो जिसको बोलते हैं हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज। तो वो लेने की कोशिश करती है कंपनी फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन। एंड सेगमेंटेशन में यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट को डिवाइड करती है। सेम प्रोडक्ट है, सेम फॉर्मूला है मैन्युफैक्चरिंग का। लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल, फेयर एंड लवली। तो बेसिकली व्हेन द प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड इनिशियली इट वाज ओनली मींट फॉर लेडीज, बट बाद में इसको अगेन डिफरेंस यू नो डिफरेंशिएशन आई मीन सेगमेंट किया गया। फेयर एंड लवली फॉर वुमेन, फेयर एंड लवली फॉर मैन, ठीक है। तो लाइक दिस, तो ये सारे प्रोडक्ट पोजीशनिंग की स्ट्रैटेजीज हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन में, आई मीन क्वेश्चन में। एक आप डिफरेंस कर सकते हैं हाई टेक पोजीशनिंग एंड हाई टच पोजीशनिंग पे। ओनली वी विल कवर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द डिफरेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय फर्म्स फॉर सिलेक्टिंग द टारगेट इंटरनेशनल मार्केट। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मार्केट, फॉरेन मार्केट सिलेक्शन पे है। व्हेन वी आर सिलेक्टिंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर, व्हेन यू आर आस्क्ड टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर, कि आपको लंदन में माल बेचना है, अमेरिका में माल बेचना है, पेरिस में माल बेचना है या फिर जापान में माल बेचना है। सो हाउ विल यू गो अबाउट दैट, हाउ विल यू सिलेक्ट द टारगेट इंटरनेशनल मार्केट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मेरी स्टडी मटेरियल्स में 4 मेथड्स मेंशन किए हैं। द फर्स्ट वन इज मार्केट साइज। You will look for the market size. How many customers are there? क्योंकि वहीं से मेन डिमांड आएगी। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मैनेजर टू नो कि भाई कितने कस्टमर्स हैं और उनके एटीट्यूड कैसे हैं। द सेकेंड वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। थैंक गॉड इंडिया, मतलब इंडिया का तो नाम ही खराब है व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स। फॉरेन कंट्रीज में आई होप कि वैसा नहीं है। द गवर्नमेंट इज स्टेबल, तो यू मस्ट ensure as a marketing manager that the government, their policies, their economic policy, their international policies वो बहुत अच्छी है। That should be cooperative. Legal environment, laws and regulations of the country where you want to sell the goods, so that should be taken into account. And the social and cultural environment, ये भी बहुत important है। As a manager, as a company, you should know कि वहाँ के जो consumers हैं उनका कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, लाइक इन विच लैंग्वेज दे द टॉक, एंड रिलीजियस टॉलरेंस कितना है।
तो लाइक दिस आप आंसर्स में बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये 4 मेथड्स को याद रखिए। मार्केट टारगेटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। हाउ ए कंपनी कैन एंटर इनटू फॉरेन मार्केट्स। तो अगेन यहाँ पे 5, आई थिंक मैंने IBO 01 में इन माई येस्टरडेज वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड अबाउट दिस कि वाई डू फर्म्स गो इंटरनेशनल। यहाँ पर भी है IBO 02 में कॉमन क्वेश्चन है। तो एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं कि फॉरेन मार्केट में एंट्री कैसे कर सकते हैं आप। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस और वेज बाय विच ए फर्म कैन एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट। तो जो सबसे पहला जो दैट फर्स्ट स्टेप इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकती है कंपनी। द सेकेंड वन इज इट कैन गो फॉर फ्रेंचाइजिंग, डिफरेंट कंपनीज के साथ में मिलके, आई मीन डिफरेंट कंपनीज और इंडिविजुअल्स इट कैन गिव एज ए फ्रेंचाइजी। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस कर सकती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एंटरिंग इनटू द फॉरेन मार्केट। जॉइंट वेंचर कर सकती है एंड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सो दिस मेथड्स इट कैन यूज टू एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट। तो ये चारों मेथड्स के आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये भी आपको लर्न करने चाहिए फॉर द एग्जाम। ओके, फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एज वी नो के एवरीथिंग हैज एन एंड। वी ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डाई वन डे। द सेम वे द प्रोडक्ट विल ऑल्सो डाई। आपने देखा होगा कि मारुति 800 एक टाइम पे तो बहुत ही अच्छी चली वो कार, एंड लॉट ऑफ पीपल बाय दैट कार, एंड अचानक से मालूम नहीं कंपनी को क्या हुआ, it closes down the production of Maruti 800. Instead, it launched Maruti Alto, है ना। तो बिकॉज कंपनी जानती है कि हर प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है। ओके, एंड देयर आर 4 स्टेजेस इन दिस लाइफ साइकिल। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस। तो ये ग्रोइंग स्टेज है, देन कम्स मैच्योरिटी स्टेज, एंड सो दीज आर द 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो पहले स्टेज है इंट्रोडक्शन, जहां पे द कंपनी इंट्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट इन द मार्केट। द प्रोडक्ट ट्राइज टू कैप्चर द मार्केट। यहां पे कंपनी को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू द कंपटीशन। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ब्रांडिंग, फैंडिंग, बहुत सारी चीजें अप्लाई करती है इन द इंट्रोडक्शन स्टेज। स्लोली एंड स्लोली द प्रोडक्ट गेट्स मैच्योर्ड, है ना। यहां से वो ग्रो करना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी सेल्स ग्रो करती है। द कंज्यूमर नाउ दे नो दैट प्रोडक्ट, समझ गए कि दिस इज द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। Then comes the stage जहां पे maturity. The product is fully matured. The sales are stable. Neither growth in the sales nor decline in the sale. The sale is constant. And after that the sale starts to decline. धीरे धीरे सेल कम हो जाती है, the competitors take advantage and the product has to lose its life. तो ये क्वेश्चन आपको करना है इन दिस एग्जाम। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। इफ यू आर ए मार्केटिंग मैनेजर, एक नया प्रोडक्ट आपको बनाना है एंड मार्केट में लॉन्च करना है, तो व्हाट स्टेप्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो यहां पे 6 स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन मीन्स सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि यस, दिस इज द प्रोडक्ट आई वांट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इन द मार्केट। दैट इज कॉल्ड आइडिया जनरेशन।
द सेकेंड वन इज आइडिया स्क्रीनिंग। जो भी आपने आइडिया सोचा है प्रोडक्ट के बारे में, यू विल ट्राई टू एनालाइज वेदर दैट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। तो आइडिया को स्क्रीनिंग करना जरूरी है। स्क्रीनिंग में ये भी होता है कि व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज थ्रू विच वी कैन बी एबल टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और नॉट। तो दैट इज आइडिया स्क्रीनिंग हो गया। थर्ड, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। यहां पे प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे हम लोग, उसको प्रोसेस में लाएंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे एज सैंपल्स एंड देन वी विल टेस्ट, उसकी मार्केट में टेस्टिंग करेंगे टू सी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और अबाउट द प्रोडक्ट। देन वी विल डू द कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन में यहां पे सारी चीजें आ गई, सेल्स, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट एंड वी विल ट्राई टू कैप्चर द मार्केट, the product is spread out in the market. And lastly, evaluation. Don't forget to take the feedbacks. जितने भी यूट्यूबर्स हैं, they always ask for the feedback of the video. That is very necessary to analyze what the viewers or what the consumers think about the product. So very important question for the exam, the different processes of developing a new product in the market. The next question is from branding, packaging. ब्रांडिंग से कर सकते हैं, एज वी नो ब्रांडिंग मीन्स गिविंग ए नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट। वी हैव सीन दैट ब्रांडिंग इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। एक बार अगर ब्रांड बच जाए प्रोडक्ट की, तो इट इज़ वेरी इजी टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। कंपनी का ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्रॉफिट, बहुत फायदे हैं। एंड ब्रांडिंग के साथ साथ में उसके साथ में जो और भी इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी सेल करने शुरू कर देते हैं। तो ब्रांडिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन 100% मिल सकता है एग्जाम्स में। डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए गुड ब्रांड, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी मिल सकती है कि एज ए ब्रांड मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर हाउ यू विल व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स और फैक्टर्स दैट यू विल कंसिडर बिफोर मेकिंग ए ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में यहाँ पे देयर आर 4 स्ट्रैटेजीज बेसिकली। जो पहली स्ट्रैटेजी है दैट इज कंपनीज नेम। अगर कंपनी का नाम अच्छा है, वेल एंड गुड, उसी के नाम से ही मतलब प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स में पॉपुलराइज किया जाता है। सो दैट क्रिएट्स अ ब्रांड। देन कम्स इंडिविजुअल ब्रांडिंग, लाइक फॉर एवरी प्रोडक्ट द कंपनी मेक्स एन इंडिविजुअल ब्रांडिंग। लाइक फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इसके जितने भी सोप्स हैं, लक्स एक अलग ब्रांड है, सिंथॉल एक अलग ब्रांड है, और भी बहुत सारे, लाइफ बॉय, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एंड सभी के अपने अपने मार्केट हैं, अपने अपने मार्केट शेयर है। इवन द कंपनी डजंट नो, आई मीन द कंज्यूमर्स, कि ये सारे साबुन एक ही कंपनी बनाती है या फिर डिफरेंट कंपनीज बनाती है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, दे नो अबाउट द ब्रांड। तो लाइक दिस। देन एटीट्यूड ब्रांडिंग, अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट, दैट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी इज डन। वन मोर, अम्ब्रेला ब्रांडिंग। अम्ब्रेला ब्रांडिंग हो गया, लाइक एक अम्ब्रेला यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, एक ब्रांड, एक अम्ब्रेला के अंडर में आ गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो लाइक दिस। आप एक डिफरेंस कर सकते हैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग का। एंड पैकेजिंग पे कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। इंपॉर्टेंट है बिकॉज पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। It also gives, it adds the attractiveness in the product, and it also helps in the marketing and promotion of the product. And labeling, ये भी आप कर सकते हैं, just go through this. The next one is international pricing and what are the different factors that should be kept in mind before pricing a product. One of the very important question. You should revise this for the exams 100%. कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, आई मीन प्राइस, प्राइसिंग करने के पहले, लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर। तो सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट? इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि जितना कॉस्ट होगा उसमें ऐड करो प्रॉफिट, सेल कर दो, सिंपल। सेकेंड वन, कॉम्पिटिटर्स प्राइस यू मस्ट कंसिडर। सेम प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटर 10 रुपये में बेच रहा है, आप उसको 15 में बेचोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सेल। So you have to see the competitor's price. Demand for the product, डिमांड कैसी है,
If the demand is good, you can increase the price. If the demand is not good, तो you have to go with the customers. Object of the firm, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है? मारवाड़ी एटीट्यूड है या फिर सिंधी एटीट्यूड है? मारवाड़ी क्या करते हैं? थोड़े प्राइसेस, मतलब थोड़ी प्रॉफिट, ज्यादा सेल्स. अपोजिट ऑफ सिंधु, आई मीन सिंधी लोग जो मैंने देखा है मुंबई में, कि वो लोग वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं. वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे. दे वांट वॉल्यूम, दे वांट मनी, द कैश फ्लो. तो दिस इज द डिफरेंस. देन इनकम ऑफ द कस्टमर्स, ये भी आपको देखना है, सर्वे करना पड़ेगा कस्टमर्स की इनकम कैसी है. मोस्ट ऑफ द सोशल क्लासेस, वो जहां पे आप माल बेच रहे हो, दे आर सर्विस डूइंग पीपल और दे आर बिजनेसमैन. तो उनकी इनकम कैसी है? Accordingly you will price your product. And lastly the government regulations, government policies कैसी हैं? Taxes, I mean fiscal policies कैसी हैं? कितना sales tax, कितना octroi, कितना central tax, कितना GST आप दे रहे हैं? Accordingly you will fix up the prices of the product. One question you can do from transfer pricing. In the yesterday video also I explained about this. Sometimes the company transfer the prices or to its subsidiary company to invade, to skip the taxes. बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ये प्रैक्टिस करती है ट्रांसफर प्राइसिंग, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस देने से बचने के लिए दिस पॉलिसी इज बीइंग अडॉप्टेड बाय द कंपनीज, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज, बिकॉज उनके तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में. तो वो सेम प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इट शिफ्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स, इट ट्रांसफर्स द प्रोडक्ट. सो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा टैक्स उनको बच जाता है. सो दैट इज वाई दिस ट्रांसफर प्राइसिंग इज डन. एंड आगे चलते हैं. इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं IMC, एंड इसके डिफरेंट प्रोसेसेस. एज वी नो IMC के बारे में मैं बता दूं आपको इन सिंपल वर्ड्स. इट रिफर्स टू इंटीग्रेटिंग ऑल द टेक्निक्स ऑफ ब्रांड प्रमोशन टू प्रमोट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेस. इंटीग्रेशन, जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं, to integrate them, to coordinate them so that the company can sell its product in the market easily. So that is called international marketing communications. All the departments of marketing should cooperate with one another so that their communication strategy, their communication should be proper. So that is main. And इसके जो processes हैं, steps हैं, that is very important. एडवर्टाइजिंग से कर सकते हैं आप, स्टैंडर्डाइजेशन, एडेप्टेशन, ये भी एक बार आप जस्ट गो थ्रू दिस. पर्सनल सेलिंग. नाउ पर्सनल सेलिंग में ये क्वेश्चन, एज वी नो पर्सनल सेलिंग इज डन बाय द सेल्समैन, जो फिजिकली कस्टमर्स के आमने सामने होता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है टू सेल इट्स प्रोडक्ट. सो दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग. Now how, like what are the different steps involved in personal selling? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड इसके जैसे यहाँ पे 8 स्टेप्स हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज प्रिपरेशन. ही विल प्रिपेयर फॉर दैट, फॉर द कंज्यूमर, कि मेरे को ये प्रोडक्ट को सेल करना है, एंड प्रोडक्ट के बारे में ऑल द इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट्स एंड ट्राइज टू अप्रोच द कस्टमर. प्रोस्पेक्टिंग, ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोस्पेक्ट customers who will buy the product. There are different types of customers. तो जिसके पास में पोटेंशियल है, जो खरीद सकता है, so he will search for that. That is called prospecting. Pre-approach, अप्रोच के पहले उसको प्री अप्रोच करना है कस्टमर्स को, so that he comes in contact with the salesman. Then approach, then he will, now यहाँ से उसका मेन स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन. I mean physical communication, the physical convincing between the buyer and the salesman. Then comes demonstration. अगर प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है तो he has to show the demonstration of the product, and then he will handle the objections.
अगर कस्टमर्स अगर कोई भी इंक्वायरीज कोई भी क्वेश्चंस पुट अप करता है तो ही मस्ट आंसर दैट, एंड देन ही विल क्लोज द सेल, दैट मीन्स द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर and the money has been collected. And lastly, follow up, feedback, take the feedback of the customer. Then we have the next question, publicity, its advantages and disadvantages. ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है. पब्लिसिटी, जहाँ पे कंपनी को एक पैसा भी खर्चा नहीं करना होता है. पब्लिसिटी में बहुत पावर है. ऑटोमेटिकली अगर पब्लिसिटी होती है तो दैट इज वेल एंड गुड. तो बहुत ही अच्छा सोर्स है टू increase the sales in the market. One difference you can do, that is advertising and publicity. इन दोनों का difference एग्जाम्स में always आता है. यूनिट 15 में प्रोडक्ट एंड सर्विस का डिफरेंस आप कर सकते हो, ईजी है. वी कैन इवन कंपोज दिस आंसर इन आवर ओन वर्ड्स. एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज इन दिस वर्ल्ड, एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच आर ऑफर्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट. सर्विसेज के लिए तो इंडिया इज वेल नोन इन दिस सेक्टर. गट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं टू प्रमोट द मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज, द मूवमेंट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ गट्स, ये भी आप कर सकते हैं. Then we have some issues with the international marketing or MNCs, TNCs, कुछ इश्यूज उनके तरफ से. तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में मिल सकता है, जैसे कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर बीइंग डन बाय दिस MNCs, लाइक एडल्ट्रेशन, मिलावटी सामान बेचना, डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स, लो सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉयज, पुअर वर्किंग कंडीशंस, वेरी हजार्डियस, नॉट गुड फॉर हेल्थ, टैक्स इन्वेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि टैक्स बचाने की कोशिश करती है, पॉल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डोमेस्टिक रिसोर्सेज. तो ये कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस विच आर एडॉप्टेड बाय द MNCs. मल्टीनेशनल मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग, इसका डिफरेंस कर सकते हैं. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केटिंग रिसर्च पे है. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च. जहाँ पे मार्केटिंग है वहाँ पे रिसर्च तो होना ही है, बिकॉज वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द कस्टमर्स, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स. ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनके बारे में वी नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. उसके लिए वी हैव टू डू अ रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर. तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल सकता है. And the difference between MIS and MR, and we have again unit 18 data collection पे है. What are the different sources by which a marketing manager can collect data about the international market? तो इसके जो different methods हैं, like by observation, by interview, by questionnaire, by reporters, by schedule. तो ये कुछ एक different sources हैं with the help of which a marketing manager can collect information फ्रॉम द मार्केट. एंड इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ये आपको एग्जाम्स में करने हैं. सैम्पलिंग एक क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं. एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जैसे कि दो मेथड होते हैं, रैंडम एंड नॉन रैंडम. तो रैंडम सैम्पलिंग अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है फॉर दिस जून टर्मिनल एग्जाम. एंड लास्ट यूनिट 19 डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट. लास्ट चैप्टर है, रिपोर्ट लिखना है आपको. तो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, उसके मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जैसे कि इट शुड बी वेरी एक्यूरेट, इट शुड बी सिंपल, द लैंग्वेजेस रिटन इन द रिपोर्ट शुड बी सिंपल एनफ, रिलायबिलिटी, द डेटा, द इंफॉर्मेशन दैट यू आर राइटिंग इन द रिपोर्ट, तो वो भी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए. इट शुड बी इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए. एंड द रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेड इन टाइम सो दैट the management can take immediate decisions, and it should be complete in all respect. Complete report होनी चाहिए. It should not be half completed or incomplete report. So friends, these are few important questions, and I hope कि ये वीडियो में मैंने जो questions दिखाए आप जरूर से उसको लर्न करेंगे. and ये questions में से I am sure बहुत सारे questions आपको मिलने वाले हैं in the exam. The thing is that you should have a good writing skill and अच्छा memory होनी चाहिए. Just keep on writing, and a very